Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of Basic Electrical and Electronics. So far we have been discussing the previous lectures regarding the transformer, and we have discussed what is transformer, what is its purpose, and what is the working principle of it. Now today we go more deep into the transformer and will see other mathematical equations regarding the transformer. And also we have done multiple problems, and I'm sure you must have done all you have done practice on those practice other than those problems that I have discussed it in the slides. All the slides are being shared with you as far as the lecture are being conducted. So anyone have any issue, any regarding the subject matter, the test of the subject, or any other thing, you may discuss with me as this in during the entire session, or in through the email or the WhatsApp or personal message, whatever medium you feel is good for you. Okay, so a little bit quick review regarding the previous learning, and then we will move forward to keep the momentum of that learning. So अभी तक हमने क्या किया है कि हमने अभी ट्रांसफार्मर को देखा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस किया, उसी से मुंसलिक हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके इक्वेशंस थे उसके हिसाब से इसको हमने फिर प्रॉब्लम्स भी किए। तो आज हम इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जो सीखनी है उसको डिस्कस करूँगा। ये आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें इस हद तक आपको आइडिया होगा यहाँ तक। अब हमारे पास ये वाली चीज़ें जिनको आज मैं फोकस पे रखूँगा, रूल्स ऑफ फॉर रेफरिंग द impedance referring and equivalent circuit of the transformer and phasor diagram and uh, voltage regulation, efficiency of transformer, and also the transformer tests. What are the tests that are being performed on the transformer and the auto transformer and instrumentation transformer? This overall the whole compact package of the transformer that is being discussed in today's lecture. Okay, so quick review. What is transformer? Transformer, it's a device that converts AC voltage to another level of the AC voltage at the same frequency. Keep in mind the point. It consists of one or more coils of wire wrapped around a common ferromagnetic core. Those coils are usually not connected electrically, although in some cases those can are connected electrically, that I will discuss in the auto transformer. You will see how it is happens. However, they are connected to the common magnetic flux confined to the core. Okay, the definition is all contain all the information that we have discussed so far. That what is transformer? It's actually uh, coupled to the magnetic flux, and that magnetic flux flows through the core, and that's usually made of the iron core or steel core that is laminated. And one is the primary side and second is the secondary side. Those are all the conducting coils which have number of turns. Okay, so what are the common and the most important characteristics of the transformer that are very important to understand? And it has no moving part. Important thing. Prior to this topic of the transformer, we have learned regarding the DC machines. If you guys remember the earlier lecture, in that we the concepts of the magnetics and electric field and magnetic field generation flux seems to be the same, but the difference there was the moving part, that is one is called the rotor part and the other was the stator part, and those also connected through the magnetic coupled. But in the result, there was generating and the AC and the free rotation with some speed, and the other was the torque.
was the true characteristics in the DC motor. But in this part, there is no moving part. You have not seen any transformer that have any rotating part inside. It's all still static part. No electrical connection between the primary and secondary winding. That's you must have, I guess, imagine. I had remembered this thing till now. I had discussed so many times. Okay, windings are magnetically coupled. The question arises where if it's non-electrically connected, how the transformer is working? Simple answer is they are connected to the magnetic. Rugged and durable in कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस आपको पता है, उसको हमने कंस्ट्रक्शन भी देखी है उसमें, जो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी जो उसमें कनेक्टेड होता है. अच्छा, एफिशिएंसी इज वेरी हाई, मतलब इसकी अपने लॉसेस एज कंपेयर टू दूसरे डिवाइसेस होते हैं उसमें बहुत ही हाई है. इसमें लॉसेस इतने ज़्यादा भी नहीं होते हमारे. दूसरा, फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज. ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती. ये सारी चीजें मैं सिर्फ क्विक रिव्यू कर रहा हूँ, मगर हम सारी कर चुके हैं. ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल अगेन पॉइंट्स में ये स्लाइड्स में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस हैं, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ. वर्किंग प्रिंसिपल में होता है क्या है, एक हमारे प्राइमरी साइड देयर आर टू टाइप ऑफ वाइंडिंग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज के सिर्फ एक ही फेज उसको हम अप्लाई करते हैं, वेयर एज थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है जिसमें तीन फेज होते हैं. मैं इसको लास्ट में इस लेक्चर में वो भी मैं आपको उसके वर्किंग दिखाऊंगा, मगर जो तीनों फेजेस का वर्किंग प्रिंसिपल या जो पैटर्न वो एग्जैक्ट सेम ही है जो यहाँ जो आपके पास यहाँ पर है. उसके थोड़ी सी चेंजेस है कनेक्शन ओरिएंटेड, अदरवाइज बाकी जो फिजिक्स बिहाइंड दिस वर्किंग जो ट्रांसफार्मर वर्किंग जो है वो सेम ही है. अच्छा, टू टाइप्स वाइंडिंग है सिंगल फेज में, कौन कौन सी, प्राइमरी सेकेंडरी. और जो प्राइमरी में हम जो देते हैं हम सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, और सेकेंडरी में हम लोड लगाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा. ये हमारा सप्लाई है प्राइमरी का, ये प्राइमरी वाइंडिंग है. जो वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स को हम N1 शो से करते हैं, और जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मतलब कितने वायर को हमने टर्न किया हुआ है अराउंड द कोर लिम्ब, तो उसमें हम उसको हम N2 कहते हैं. और जो हमारे पास यहाँ पे सप्लाई को वोल्टेज V1 कहते हैं, और जो हम लोड पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको VL भी कहा जाता है, V2 भी कहा जाता है, एंड डिफरेंट नॉमेनक्लेचर. बट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि वो जो वोल्टेज है हमारा सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो कनेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कोर है. जो कोर में ये जो आपको डाटर लाइन नजर आ रही है, ये एक्चुअल में मैग्नेटो फ्लक्स है जो कि यहाँ पर इसमें मूव कर रहा है. अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों पैदा होता है, क्योंकि जिस वायर में करंट कैरी हो रहा होता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अगर वो करंट कैरिंग वायर जो है अल्टरनेटिव उसमें सप्लाई हो, मतलब इस तरह का हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी. और अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, जब भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के से गुजरती है, तो फिर वो वोल्टेज इंड्यूस करती है, जो कि यहाँ पर E2 है, जो कि बराबर होगा V2 के. ठीक है, तो ये हो गया सिंपल उसकी चीजें, और यही सारी चीजें यहाँ पे पूरी लिखी हुई हैं जो आपके सामने ले. अच्छा, the flux in transformer, the current in the primary, the current in primary winding establish a flux. ठीक है. अब क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी साइड होती है उसमें हमारे पास करंट हमने गुजारा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुए. अब that flux that moves from primary to secondary and links both the windings is called the mutual flux, and its maximum value is represented by phi m, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं phi m से. ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है. अच्छा, यहाँ पर जो आपको स्मॉल डॉटेड पॉइंट नजर आ रही है, ये एक्चुअली में होता है क्या है, ये हमारे जो है फ्लक्स हैं, जो कि इस कोर में से यूं से नहीं गुजरते, बल्कि यहीं पे ही लूप बना देते हैं. तो ऐसे फ्लक्स को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स. द फ्लक्स व्हिच लिंक्स ओनली द प्राइमरी वाइंडिंग्स एंड कंप्लीट्स द मैग्नेटिक पाथ थ्रू द सराउंडिंग एयर इज कॉल्ड प्राइमरी. मतलब ये होता है कि ऐसे ये मिसाल लो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो उसमें जो आपके पास जो यहीं पे वो कंप्लीट कर देता है, इस कोर से नहीं गुजरता और ये एयर के थ्रू यहीं पे शॉर्ट पाथ बना देता है, तो उसको हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स. ठीक है.
अच्छा, अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है, जब यहाँ से गुजरता है तो इसमें जब लोड कनेक्टेड है तो इसमें भी करंट जो गुजरता है, तो उस करंट की वजह से उसका भी फ्लक्स जनरेट होता है, तो वो जो होता है वो भी इसी तरीके से उसका भी लीकेज फ्लक्स होता है। ठीक है, द सेकेंडरी फ्लक्स लीकेज फ्लक्स जिसको हमने फायर टू वन इज that flux which links only the secondary winding and completes the magnetic path through the surrounding air। मतलब यही है कि इसमें भी होता फिनोमेना क्या है, अब इस फिनोमेना को पूरा समझें। अब यहाँ पे आपने अप्लाई किया वोल्टेज, इसमें करंट गुजरा, करंट गुजरने से बनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, वो यहाँ पे आई। अच्छा, अब यहाँ पे लोड कनेक्टेड था, अब लोड कनेक्टेड था इसका मतलब है यहाँ पर हुआ तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हुआ, वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से लोड कनेक्टेड था, करंट पैदा हुआ। अब करंट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो वोल्टेज इंड्यूस होता है, ये जो वी, अब ये जो वोल्टेज यहाँ पर फ्लक्स जाता है, तो इस वजह से भी इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं E1। डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों की पोलैरिटीज अपोजिट होती है। V1 की जो पोलैरिटी होती है उसके अपोजिट पोलैरिटी होती है इसकी E1 की। तो अब लोड की वजह से जो करंट गुजरता है तो इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, वो भी अपोजिट होता है। मगर E1 और E2 जो इसमें जो आपके पास इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, वो और E1 की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस वजह से लोड कोई भी कनेक्टेड हो तो हमारा इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता ओवरऑल फ्लक्स पे। ठीक है, तो ये इसका है। ये जो डॉक्यूमेंट जो लास्ट टाइम जिससे मैंने पढ़ाया था, ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ, जो बच्चों ने नहीं देखा है तो उसको देख लें। और इसकी एनिमेशंस भी दिखाई थी मैंने आपको, तो वो और भी ज्यादा हेल्पफुल है अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ तक। आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जिसमें लीकेज फ्लक्स हो ही ना, मतलब जीरो हो, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग जो इसमें कनेक्टेड है उसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, नो लीकेज फ्लक्स हो, उसकी लीकेज इंडक्टेंस भी ना हो, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आर जीरो। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इसकी जीरो, नो लॉसेस ड्यू टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वजह से भी कोई लॉसेस ना हो। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज यूनिट, जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो कि वो यूनिटी है। अच्छा, ये देखो, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये हमारा वोल्टेज है प्राइमरी का। अच्छा, ये इसके फेजर डायग्राम है। एक्चुअली फेजर डायग्राम में क्या है कि अब ये प्राइमरी का वोल्टेज है, प्राइमरी का वोल्टेज है, इसके जो ये जो E1 जनरेट हुआ है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मगर जो आपके पास वोल्टेज इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी साइड पे, जिसको E2, वो जो इंड्यूस हुआ है वो है E2। ठीक है, और उसकी पोलैरिटी और V2 जो लोड के, क्योंकि यही E2 ही तो हमारा लोड पे कनेक्टेड होता है, उसको हमने नाम दिया V2, तो वो जो है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसकी फेजर डायग्राम, और ये है उसका आपका फ्लक्स, जो कि अल्टीमेटली ड्यू टू द करंट होता है। अब ये जो पूरी डिस्क्रिप्शन ये होगी फेजर डायग्राम में, इसके पूरे को सिनेरियो को समझाया हुआ। अच्छा, a small magnetizing current Im will flow in the primary winding। अब होता क्या है कि जब हमारे पास ये जो दो कंडीशंस बनती हैं, जब आपके ट्रांसफार्मर में लोड हो और जब आपके ट्रांसफार्मर में लोड ना हो, तो इस चीज को मैं इसकी मदद से समझाऊंगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट सेम ही है, हमने लास्ट टाइम इसी से ही पढ़ा था। अच्छा सॉरी, इसको मैं अच्छा, ये ट्रांसफार्मर हमारा हो गया। ओके, पेज नंबर 8 पे हम ये। अच्छा, ट्रांसफार्मर और नो लोड। अब जब ट्रांसफार्मर में कोई भी लोड नहीं दिया हो, ओके, तो
अब क्या हो रहा है, जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं होता तो उस टाइम भी अब यहाँ पे कोई लोड ही नहीं है, ठीक है? जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पर ये जो है ना एक करंट ड्रा कर रहा होता है, जिसको हम नाम दिया जाता है आई नॉट, ठीक है? कहीं-कहीं पे इसको आपको नाम I1 भी होता है, कहीं भी I01 भी। बट वो ये आई नॉट इंडिकेट करता है जब नो लोड है, कोई भी लोड नहीं है। तो ये अच्छा, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके में 2 कंपोनेंट है कौन करंट के, कौन-कौन से? एक कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। ये वो कंपोनेंट है जब जो सप्लाई से वो कंज्यूम कर रहा है कि नो लोड पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना, जो वो ये करंट मतलब कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। दूसरा है वर्किंग करंट, जिसको हम कहते हैं आई ओमेगा। दिस करंट प्रोवाइड्स लॉसेस इन आयरन कोर। जो आयरन कोर है हमारी, इसमें जो गुजर रहा है, तो इसमें भी जो हमारे पास जो जो लॉसेस हो रहे होते हैं, तो वो ये शो कर रहा है, जिसको हम कहते हैं वर्किंग करंट या ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आपके पास, अब ये हो गया 2 उसके कंपोनेंट जब नो लोड है। अब क्या होगा, इसकी फेज़र डायग्राम ये वही जो दिखाई थी मैंने, ये आपके पास V1 अप्लाई किया और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लेग पे होगी, और जो आपका इंड्यूस वोल्टेज होगा वो अपोजिट इन पोलैरिटी होगा, जो कि इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है? और जो सेकेंडरी कॉइल पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो होगा E2, जो कि E1 से रिजेम्बलेंस में होगा, ठीक है? आई बात समझ में? अब ये हो गया पोलर डायग्राम। अब ये हो गया नो लोड पे कंडीशन। अब लोड पे क्या होता है, अब ये जो है करंट, वर्किंग करंट, और उसकी जो इक्वेशंस है वो ये हैं, ठीक है? अब हमने ये हो गया, इसमें हमने करंट लिखे ना, तो इसके 2 कंपोनेंट निकाले, एक वर्किंग करंट ये, और एक हो गया ये कंपोनेंट आई ओमेगा इस फेजर डायग्राम में। तो ये जो होता है आपके पास वर्किंग करंट कॉस में, और ये जो बाइस अपान हाइपोटेन्यूज हम पढ़ते हैं आए हैं, तो वो साइन आ गया। तो इनकी जो इक्वेशन जो हमने समझो कि वेक्टर को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, वो ये हो गया। ओवरऑल दोनों का रिजल्टेंट जो क्या निकलेगा, वो आपका ये निकलेगा, ठीक है? ये हो गया हमारा पास नो लोड। अब लोड कंडीशन में क्या होता है, जब हम कोई ना कोई लोड लगाते हैं, तो उसमें जो आपके पास जो कंडीशन बन जाती है वो ये बन जाती है, ठीक है? जब हम ये हो गया नो लोड पे। अब ट्रांसफार्मर को हम अप्लाई करते हैं, ये क्योंकि ये फिगर इसी की हेल्प कर में हमारे पास है। जब हम लोड लगाते हैं, इन फिगर 1 नो लोड कंडीशन द ट्रांसफार्मर प्राइमरी ड्राज आई नॉट फ्रॉम द सप्लाई विच इज टू कंपोनेंट, ठीक? अब जब नो लोड है, कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, तो उस टाइम ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी वाइंडिंग वो आपका सिर्फ आई नॉट ड्रॉ करता है सप्लाई से, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, और वो जो एक मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, जिसको हमने आई एम का, और दूसरा आपके पास आई म्यू का, और दूसरा आपका वर्किंग करंट, ठीक है, 2 का। अब हमने क्या किया, व्हेन ए लोड with lagging power factor is connected across the secondary transformer, the secondary current starts flowing through the load, ठीक है? अब क्या हुआ, हमने जब लोड लगाया तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। the secondary current set up the flux phi 2 in the iron core which opposes the main flux phi m। ये अब क्या हो रहा है, जैसे लोड लगाया का मतलब है करंट आ गया। जब करंट आया, तो आपका ये इस करंट की वजह, इसमें करंट फ्लो हुआ, और करंट, वही करंट की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी एक जनरेट हो गई, मगर वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि जो मेन हमारा फ्लक्स है उसको अपोज कर रहा है। ये देख रहे हैं, इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन है, इसकी इस तरफ और इसकी इस तरफ। आई बात समझ में? यहाँ तक बात, ये फिगर समझ में आ गई। बिकॉज ऑफ दिस नेट फ्लक्स इन आयरन कोर डिक्रीजेस। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब लोड लगाया उसमें जैसे करंट फ्लो हुआ, पहले लोड नहीं था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, मैग्नेटो फ्लक्स नहीं जनरेट हो रहा था सेकेंडरी साइड। अब जब हमने लोड लगाया, तो उधर आपका फिर सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड उस करंट फ्लो की वजह से बनी, मगर जो कि अपोजिट थी
टू द मैग्नेट जो मेन मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसकी वजह से वो जो आपके पास वोल्टेज इंड्यूस हुआ था सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, अब ये हो गया। और इस ओवरऑल आपका जो नेट फ्लक्स है जो कोर से गुजर रहा था 5M, ये रिड्यूस होना शुरू हो गया। ये जो 5M है ये रिड्यूस होना शुरू हो गया। चलो यहाँ तक अब बात आई होप के क्लियर हो गई होगी। Hence the flux linking with the primary coil reduces and induces EMF when decreases। अब इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, जब ये 5M जो है रिड्यूस हो गया, तो इस जो यही 5M जो जहाँ पे प्राइमरी में एक इंड्यूस कर रहा था, वोल्टेज को इंड्यूस कर रहा था, एक तो सप्लाई वोल्टेज था, मगर ये जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर भी इंड्यूस हो रहा था, मगर यहाँ पर भी इंड्यूस हो रहा था। ठीक है, मगर वो अपोजिट पोल्स में इसके जो सप्लाई वोल्टेज की। अब वो जो आपकी इंडक्शन जो हो रही थी वो भी रिड्यूस हो गई, मतलब अब वो मिसाल और वो पहले 100 थी, अब वो 90 हो गई ड्यू टू द लोड इंडक्शन। सप्लाई वोल्टेज नहीं, सप्लाई तो आप समझोगे जिस तरीके से सपोज करेंगे जनरेटर लगा दिया या कोई ऐसी अल्टरनेटिंग करंट या यूपीएस लगा दिया जो आपका इसको सप्लाई दे रहा है। मगर इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास जब लोड लगा है इसकी वजह से करंट जनरेट हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके मेन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में थी। अपोजिट होने का नतीजा ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी और ये वीक हुई, तो यहाँ पर EM1 जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ था प्राइमरी में वो भी रिड्यूस होना शुरू हो गया। अब ये जो रिड्यूस वोल्टेज होता है, इट मींस जो पहले E1 और V1 जो एक्चुअल में बराबर थे, अब इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस जनरेट हो गया। अब ये डिफरेंस जो है इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आप देखें, अब इन फिगर से ड्यू टू द रिडक्शन इन इंड्यूस वोल्टेज E1 द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। मतलब V1 और E1 जो है उन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया एक। तो दिस प्राइमरी विल ड्रा एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट I1 to overcome the load connected across the secondary. This current is always out of phase with the I2. ठीक है, तो अब क्या हुआ, उस पोटेंशियल को आपको कंपनसेट करने के लिए जो डिफरेंस जनरेट हो रहा था ड्यू टू द करंट, तो ड्यू टू द लोड, जो कि यहाँ पे करंट हुआ होगा ना, जिसको हमने नाम दे दिया I2। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करता है प्राइमरी, एक एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगी सप्लाई से। वो जो एक्स्ट्रा करंट है वो जो हो गया I1 डैश, जो कि एक्चुअल में मैग्नेटाइजिंग करंट जो आपका I0 जिसको हम कह रहे थे नो लोड का, उसके साथ ऐड हो जाएगा और एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, जब एडिशनल करंट ड्रॉ किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, दिस करंट I1 जनरेट्स द फ्लक्स phi1 which opposes the phi2। This action cancel out the phi2 and phi-1। अब क्या हुआ कि ये जो आपके पास इसकी वजह से जो phi2 जनरेट हो रहा था, ये जो इसमें लोड एक्शन होने की वजह से जो करंट लोड आया, करंट आपके पास जनरेट हुआ, करंट की वजह से phi2 बना, जो कि phi-m की वजह से जो phi-m को वीक कर रहा था, phi-m वीक हुआ तो इसने करंट ड्रा किया। जब एक्स्ट्रा करंट ड्रा किया तो फिर एक और एडिशनल इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, जो कि एक्चुअल में इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि सिर्फ इसकी वजह से E2 की वजह से आया था, उसको कैंसिल आउट करता है। तो ओवरऑल आपको जो नेट रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा कि आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही मिलेगी, बाकी इस साइड की वजह से जो एक्स्ट्रा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो इसको वीक कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, वो कैंसिल आउट होगी। इसमें जो एक्स्ट्रा करंट आपने ड्रा करवाया था उसकी जो ड्रा हो रहा था, जो ड्रा हो रहा है मतलब लोड कनेक्ट उसको कैंसिल आउट कर रही है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। जो नेट रिजल्ट आपके पास जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सिर्फ आपको phi-m एक मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो आपको जनरेट हो रहा है phi-m प्योर। अच्छा, और यही चीज जो है ना फिगर 4 से मैंने आपको दिखा दी, कैंसिल आउट इज द नेट फ्लक्स इन आयरन कोर बिकम phi-m।
और जब वो एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देते हैं तो ओवरऑल नेट फ्लक्स जो आपके पास जनरेट होता है वो 5M जनरेट होता है. Hence the magnetic flux in iron core of transformer remains same whether the load is on or not. ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा जो ओवरऑल आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपके ट्रांसफार्मर के आयरन कोर में जो होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा वेदर इट इज ऑन लोड और नॉट नो लोड कंडीशन. ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल ट्रांसफार्मर की पूरी वर्किंग जो है ना समझ क्लियर हो गई होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, प्रैक्टिकल जो एम्पलीफायर्स होते हैं, और सॉरी मैं एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं. अब ये जो पूरी कहानी मैंने आपको वहां से ना एक एक करके समझाई, जो वो पूरी यहाँ पे लिखा है. ठीक है, वहां पर वो डॉक्यूमेंट भी है और ये पूरी फेजर डायग्राम है और उसको यहाँ पर इस फेजर डायग्राम को यहाँ पर समझाया हुआ है. और जो मैंने कहा मतलब समझाया वो एक्चुअल में आपको यहाँ पे नेट रिजल्ट क्या मिला, बस सब ये वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज. बाकी ये जो फिनोमेना बैक एंड फिजिक्स हो रही है वो एक दूसरे कैंसिल करके आपके पास आ रहा है. तो हमें जो फेजर डायग्राम मिला वो ये था जो कि हमारे हेल्प करेगा. तो आप लोगों ने ये देख लिया. ठीक है, जो आपके पास द प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉज ए करंट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स. दिस प्राइमरी साइनोसॉइडल प्रोड्यूसेस साइनोसॉइडल फ्लक्स दैट कैन बी एक्सप्रेसेड. ठीक है, जब हम सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड पे तो आपके पास एक जाहिर बात है मैग्नेटिक फ्लक्स भी वो साइनोसॉइडल जनरेट होता है तो वो इसके बराबर होता है. ठीक है, phi is equal to phi m sin omega t. इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी वाइंडिंग. ठीक है, जो वोल्टेज प्राइमरी साइड पे जो इंड्यूस हो रहा है जिसको E1 कह रहे थे वो इसके बराबर. और सेकेंडरी के जो आपका सेकेंडरी साइड है उस पे जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो इसके बराबर. और यहाँ पे माइनस जो इंडिकेट कर रहा है कि जो सप्लाइंग वोल्टेज है, सप्लाइंग वोल्टेज मतलब V1 था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस उस चीज को इंडिकेट कर रहा है. और यहाँ पर जो आपके पास क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली इंड्यूस हो रहा है इट मीन ये आपका जो सप्लाइंग वोल्टेज है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रहा होगा. तो इसमें 5 की जगह ये जो हमने इक्वेशन ये रखें तो ये आ गया. तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बना. ठीक है, डेरिवेटिव इसको करेंगे साइन का कॉस हो जाता है. जो साइन का कॉस और साइन जो एक दूसरे से 90 एंगल के डिफरेंस में होता है. ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर हमें की. तो ये में हमें E1 का फॉर्मूला मिल गया. वो ये था कि ये जो है फ्लक्स उससे सिर्फ 90 डिग्री का लेग है. और यही चीज जो है हमारा यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है. ये E1 है और ये FM है और दोनों के दरमियान कितना है 90 एंगल का डिफरेंस है. ठीक है, और ये हमारे पास आ गया EM1 जो कि एक्चुअल में ठीक है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E. एंड जब मैक्सिमम कब होता है जब साइन 1 हो. ये इसको हमने नाम दे दिया EM1. और RMS वैल्यू हमेशा क्या होता है 0.70% ऑफ इट. तो इसका 70% लेंगे तो एक्चुअल में वो 1/√2 होता है. तो ओवरऑल इस इक्वेशन को 2 पाई और /√2 सॉल्व करेंगे तो हमारे E1 जो बन गई इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स वो ये बन गई. और ये इक्वेशन हम सॉल्व भी कर चुके हैं पहले. और सिमिलर पैटर्न पे E2 का वही फॉर्मूला आएगा. ठीक है, फ्लक्स तो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ N1 और N2 का डिफरेंस है. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वोल्टेज और करंट का जो एक दूसरे से जो रिलेशन है वो और जो नंबर ऑफ टर्न्स का और वोल्टेज का रिलेशन डायरेक्ट है. तो वो जो है चीज हमने यहाँ पे देखी E1 E2 और E1/E2 का हम रेशियो निकालें तो फिर एक्चुअली में ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और माइनस माइनस को कैंसिल और ये बन जाता है. और अगर हम E1/E2 के रेशियो को जो N1/N2 को A लिखते हैं तो ये हमारा हो गया ये रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर. ठीक है, जो कि कहीं K लिखा होता है कहीं A लिखते हैं. मतलब एक कांस्टेंट होता है जो कि रेशियो होता है प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी. ठीक है, और इस बेस पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हमारा क्लासिफिकेशन होती है. अच्छा, द लॉसेस
the turn ratio, अच्छा, the losses are zero in ideal transformer में जीरो होता है. In this case, the input power of the supply is equal to its output power. और उस केस में हमारे पास इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से बराबर होते हैं. तो बराबर जब होते हैं तो फिर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, वो भी यही बन जाएगा. V1/V2 हम यहाँ पे E1/E2 किया था और यहाँ पे V1/V2 I2 है. तो इनका रेशियो भी वही रेशियो जो वहां पर है. ठीक है. तो इनपुट एंड आउटपुट पावर ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, इनपुट पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू V है इंटू कास. ठीक है, जो कि एक्चुअल में वो हमारा रियल पावर होता है. ठीक है, और P आउट जो है हमारा वही दोनों बराबर आएंगे जो आइडियल ट्रांसफार्मर में. फॉर एन आइडियल कंडीशन द एंगल φ1 इज इक्वल टू द एंगल φ2. ठीक है, तो हमारे पास जो ये कंडीशन है कब की, जब आपके पास आइडियल कंडीशन हो. ये ध्यान में रखिएगा. प्रैक्टिकली ऐसा क्या होता है, हम हमेशा हर चीज को देखते हैं कि बहुत नियर टू द आइडियल कंडीशन होता है, मगर हमेशा कभी भी आइडियल कंडीशन नहीं होता. ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा. तो पी आउट अपॉन पी नो, मगर ये क्या आइडियल कंडीशन हम जो सपोज करते हैं तो चीजें हमारी समझने में काफी इजी हो जाती है और हमारा एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है. तो पी आउट अपॉन पी इन एक दूसरे को वो इस तरीके से रिलेशन बन जाता है. क्या, पी आउट इज इक्वल टू V2 I2 अपॉन इंटू कास θ2, और V1 किसके बराबर हो गया एज पर दिस फार्मूला, ये बराबर हो गया आपके पास V2 बराबर हो गया, ये A इधर आ जाएगा, V2 उधर आ जाएगा, ये V1 ओवर A, और ये उसका हो गया. ठीक है, और जो जो आपके पास I2 है वो किसके बराबर हो जाता है A I1. तो ये A में कैंसिल, V1 I1 बन गया और ये cos θ1. ठीक है, ये हो गया हमारे पास P आउट अपॉन P इन. ये हो गया रियल पावर, क्योंकि पावर जो होता है इसमें दोनों होते हैं, एक रिएक्टिव पावर और दूसरा एक्टिव पावर. तो ये एक्टिव पावर हो गया रियल पावर. ठीक है, और ये सिमिलरली इसमें वही सेम होगा, सिर्फ साइन की जगह और कास की जगह साइन आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर की इक्वेशन. अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, वो हम करते हैं, इसको मैं समझाता हूँ. The number of turns in the secondary coil of a 22 kVA, 22 kVA वो है जो नंबर ऑफ टर्न्स इन जो वो है आपके पास ट्रांसफार्मर की यहाँ भी रेटिंग बताइए. प्राइमरी साइड 2200 वोल्ट की है और सेकेंडरी साइड जो है वो 220 की है. और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वो जो टर्न रेशियो है वो 50 है. फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड प्राइमरी फुल लोड करंट, सेकेंडरी फुल लोड करंट, नेग्लेक्ट द ऑल काइंड ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर. अब क्या कहता है कि भाई जब ये स्पेसिफिकेशंस हैं, सिंगल फेज है और रेशियो प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान जो है वो 50 है. अब बताओ प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और प्राइमरी साइड पे कितना करंट होगा जब फुल लोड होगा, ट्रांसफार्मर में फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा हो, और उस टाइम सेकेंडरी में कितना लोड होगा, कंसिडरिंग ऑल द लॉसेस नेग्लिजिबल, मतलब ना होने के बराबर है. अच्छा चलो हम मूव करते हैं. तो पहले हम अप्लाई करेंगे, वो रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे. फार्मूला क्या है, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, जो कि प्राइमरी वोल्टेज ये है, सेकेंडरी ये है. तो 2200 अपॉन 220, तो हमें ए मिला, वो मिला 10. ठीक है, बहुत सिंपल है. द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी टर्न्स कैन बी डिटरमाइंड एज ए इज इक्वल टू एन ओवर N2, ये भी फार्मूला में हमारा. ठीक है, ये हम अभी कर आए. तो N1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, AN2 के ऊपर. तो N2 हमारे पास, अच्छा N2 हमारे पास जो है ये रेशियो नहीं, सॉरी, ये जो है हमें सेकेंडरी कॉइल के ट्रांस बताए हुए, रेशियो नहीं है. रेशियो हमारा ये हमने अभी निकाला. ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, ये मैं रेशियो पढ़ा था, रेशियो नहीं, ये 50 जो है हमारा सेकेंडरी साइड का वो है. ठीक, तो अब रेशियो हमने यहाँ से निकाल दिया 10, सेकेंडरी साइड का हमें ये मिल गया. अब हमें प्राइमरी साइड का निकालने के लिए क्या है कि A इज इक्वल टू N1 ओवर N2. ठीक है,
जब n1 इज इक्वल टू n2 किया तो n2 किसके n1 किसके बराबर हो गया, जो कि एक्चुअली में प्राइमरी साइड है, वो बराबर हो गया an2। a भी मिला हुआ n2 भी मिला हुआ तो हमें मिल गया ये। तो यहाँ सर से एक बात तो हमें बात वैसे यहाँ से भी आइडिया हो रहा था और यहाँ से और भी क्लेरिफिकेशन हो गई, ये स्टेप डाउन है जो हाई वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कर रहा है, जो एक्चुअल में जिस तरह के नॉर्मली हमारे डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे वोल्टेज जो होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कि भाई कितना है प्राइमरी साइड पे फुल लोड पे। फुल लोड का मतलब क्या हुआ कि जब ये आपके पास कितना है क्या कहते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है 200 और 2200 मतलब 22 kVA का है। तो इट मींस अगर इसमें से मैं फुल लोड पे इतने भी ऑपरेट कर रहा होगा तो डिवाइडेड बाय वोल्टेज करूंगा तो मुझे करंट मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में प्राइमरी साइड का करंट होगा। ठीक है, प्राइमरी साइड का वोल्ट क्या होगा कि पावर वैसे भी P इज इक्वल टू वी आई है, पावर तो दोनों साइडें बराबर होती हैं। तो इट मींस अगर जो प्राइमरी साइड वोल्टेज है वो V1 है तो ये हो गया P1 V1। ठीक है, तो पावर दोनों साइड बराबर है तो P, तो I1 किसके बराबर हो गया, I1 इज इक्वल टू P ओवर V1। V1 क्या है प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी साइड का कितना है टू जो है 2200। तो यहाँ पे पावर हमें दिया हुआ है 22 kVA इंटू 10 पावर 3 और यहाँ पर आपका हो गया डिवाइडेड बाय 2200। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। तो ओवरऑल प्राइमरी साइड पे जो करंट हमारा है वो 10 एम्पियर से। अच्छा, अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई सेकेंडरी साइड पे जब फुल लोड हो क्योंकि अगेन वही इक्वेशन P इज इक्वल टू V आई वाली। अब इस इक्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पे अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों पावर सेम है तो यहाँ पर जो पावर आएगा वो सेम ही रखेंगे क्योंकि लॉसेस हो ही नहीं रहा, पी आउट इज इक्वल पी इन होगा। तो ये अब ये हो गया V2 I2, हमें I2 मालूम करना है। V2 हमें दिया हुआ है जो कि 220 है, तो अगेन वही ये हो गया हमारा 2200 के जो सॉरी 22 kV इंटू 10 पावर 3 हो गया डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा 220। तो अब ये क्या हुआ टोटल करंट, टोटल करंट कितना हुआ ये 22 kVA डिवाइड बाय 220। तो ये हमारे पास आंसर आया I2 100 एम्पियर। तो ये हमें दोनों चीजों में मिल गई। अब यहाँ पर हमें क्या गया हुआ है कि जो निगलेक्ट ऑल काइंड ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, हमने किसी लॉसेस को कंसीडर नहीं किया जो कि इनपुट पे पावर और आउटपुट पे पावर दोनों को कंसीडर किया है, दोनों को बराबर कंसीडर किया। ठीक है, तो ये आपको ओके उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी तरीके से एक दूसरा प्रॉब्लम है, टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही है। अब इसमें क्या है, एक 25 kV का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 200 एंड 400 है। द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए 220 मतलब जो सप्लाई कनेक्टेड है वो है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से। कैलकुलेट द टर्न रेशियो कैसे मालूम करेंगे, सिंपल बात है, A इज इक्वल N1 और N2, ये N1 और ये N2 तो ये 0.5 मिल गया हमें। और जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला है वो ये है V1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 4.45 FM N1। ठीक है, सारी चीजें मिली हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 5M हमें मालूम करना है, वोल्टेज हमें दिया हुआ है। ठीक है, और N भी हमें दिया हुआ है, तो बस इसको मैथमेटिकली चेंजेस करनी है और वो अप्लाई करना है तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो फ्लक्स म्यूचुअल फ्लक्स है कोर में वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सर्किट का जो मैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, मैं आपको एक चीज यहाँ पे दोबारा इसी सर्किट पे लेके जाता हूँ।
हम निकाल दें ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है कि हम जो है मॉडलिंग करते हैं ना, मिसाल तौर अब ट्रांसफार्मर है, फिजिकल डिवाइस है, मैथमेटिकली इसमें हमें अगर जनरली देखें तो क्या हमें चीजें होती हैं, सिंपल इनपुट ऑफ वोल्टेज और करंट देते हैं, और उसके नतीजे में एक इनपुट पावर होता है, और इसके रिस्पेक्टिवली आपको मिलता है क्या है, आउटपुट पावर, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट मिलता है जिसका टोटल ओवर पावर होता है, और कुछ इसमें वर्किंग जो फिनोमेना होता है इसमें। अब उन फिनोमेना को हमें ऐसा मॉडल करना है जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली जिस तरीके के ये ट्रांसफार्मर बिहेव करता है वो मैथमेटिकली हम उसको इक्वली रिप्रेजेंट करें। आई बात समझ में, ठीक है। तो उसको मॉडलिंग कहते हैं, तो उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। अब उस इक्विवेलेंट सर्किट में हम जो हमारा होता है उसमें दो तीन चीजें होती हैं, एम्पीडेंस या कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, इनका जो किसी न किसी तरीके से कॉम्बिनेशन बना होता है, और वो जो हमारा एक्चुअल जो फिजिकली परफॉर्म होता है उसका एक मैथमेटिकली इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तभी इसको नाम दिया हुआ है एक इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि हमने इलेक्ट्रिकली कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब उस इक्विवेलेंट सर्किट को जो होता है उसको बनाने के लिए एक चीज जहाँ पे ट्रांसफार्मर में हमें रिक्वायर्ड होती है वो क्या है, इट इज नेसेसरी टू रिफर द पैरामीटर्स फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी और सेकेंडरी टू द प्राइमरी। दीज पैरामीटर्स आर रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। अब जो इक्विवेलेंट सर्किट्स बनते हैं, मतलब हम जो मॉडलिंग करते हैं तो तीन चार पैरामीटर्स हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है हमारे पास, या तो उसमें रिएक्टेंस होता है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, ठीक है। अब ये फिनोमेना जो पैरामीटर रिफर हम करते हैं, मतलब जो प्राइमरी वाले हैं, सेकेंडरी वाले हैं, वो फॉर सपोज या तो लिखें इन टर्म्स ऑफ द प्राइमरी, या प्राइमरी वाले जो टर्म्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ लिखें सेकेंडरी, इसको हम कहते हैं रिफरिंग, ठीक है। अब सपोज करें मिसाल, क्योंकि हमने जो रिलेशंस डेवलप किए हैं जिसमें हमने सेकेंडरी और जो प्राइमरी और सेकेंडरी के ना आपस में मैथमेटिकल रिलेशंस ऑलरेडी निकाले हुए हैं, मिसाल दो n1 अपॉन n2, ठीक है, i2 और i1 के बराबर है, और ये बराबर है v1 और v2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो है, ये जो रिलेशन है, और उससे हमें एक मिलता है इनके एक रेशियो जिसको हम कहते हैं टर्न रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। अब यहाँ से हमें इनके दरमियान एक रिलेशन मिल रहा है, तो हम जब प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के जो इक्विवेलेंट्स निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, उनको हम रेफर करते हैं। तो यह मैं यहाँ पर आपको वो पहले दिखा दूं, ठीक है। अब सपोज करें जब कोई भी आपके पास ये है उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट निकालने का, जब कोई भी आपके पास करंट लोड नहीं लगा हुआ, एक सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है और उसकी वजह से एक वोल्टेज इंड्यूस होता है यहाँ पे जो कि E2 के बराबर होता है, तो उस टाइम ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिर्फ एक ये कंपो आई नॉट होता है, और जो उसका रिलेशन कुछ इस तरीके से जो और वो किस पे कंप्राइज होता है, दो कंपोनेंट है, एक वर्किंग जो कि हमारा ये करंट, और दूसरा मैग्नेटाइजिंग करंट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो उसको हमने रेफर किया एज इंडक्टिंग के, क्योंकि इंडक्टर भी यही काम करता है कि उसमें जब करंट गुजरता है तो वो मैग्नेट फील्ड के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। और दूसरा ये जो है रेजिस्टेंस में फॉर्म में, तो ये हो गया उसका। अच्छा, ये जब लोड आ जाता है तो उसमें ये फिनोमेना चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लोड की वजह से एक और करंट I1 होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है एक इम्पीडेंस होती है, और सेकेंडरी साइड में भी एक इम्पीडेंस होती है, और बीच में ये हमारा वही जो ऑलरेडी करंट हम जो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और बाकी आयरन लॉसेस और जो हमारे लॉसेस हो रहे होते हैं वो। अब यहाँ पर ये हो गया सेकेंडरी साइड, ये हो गया प्राइमरी साइड।
अब रेफरिंग ये है कि ये जो सेकेंडरी साइड है या तो इसको इन टर्म्स ऑफ इसमें लिखते हैं या इस साइड को इसमें लिखते हैं। आई बात समझ में? इसको हम कहते हैं रेफरिंग। तो इस चीज को यहाँ पे शो किया हुआ है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर्ड बाय द प्राइमरी, मतलब हमने सेकेंडरी साइड को जो है इन द टर्म्स रेफर कर दिया प्राइमरी को, प्राइमरी में, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, ये जो हमारा प्राइमरी साइड है इनके कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे, वो रिलेशन क्या है, मिसाल लो यहाँ पर जो इसमें रिलेशन क्या बनेगा, ये जो वोल्टेज यहाँ पर है वही सेम, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेलल में, तो जो वोल्टेज है इसमें, तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन एज पर द ओम्स लॉ, तो वो ये बनेगा। तो इसकी जो भी रेजिस्टेंस होगी किसके ऊपर रिलाई कर रही होगी, V1 ओवर आई ओमेगा, जो ये एक्चुअल में करंट है। और सेम जो है इसकी जो इम्पीडेंस होगी, इसकी जो रिएक्टेंस होगी, क्योंकि इसका तो वो नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगी, रिएक्टेंस होगी। और रिएक्टेंस में जो वोल्टेज यही पैरेलल में है क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड, तो ये V1 होगा और डिवाइडेड बाय हम ये जो आई म्यू, ठीक है, ये रिएक्टेंस होगी। अब ये हो गया इसकी साइड के इक्वेशन। अब यहाँ पर जो है देखें तो ये जो है हमारे पास इसमें दोनों चीजें हैं, इम्पीडेंस में रिएक्टेंस भी होती है, रेजिस्टेंस भी होती है, क्योंकि मैग्नेटिक ये जो है आपके पास प्राइमरी साइड में ये जो कोर में हो गया हमारे पास, मगर यहाँ पर जो आप मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है, इसकी वजह से एक रिलेक्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी साइड पे। अब इस प्राइमरी साइड को इन टर्म्स ऑफ जो है हम लिख रहे हैं, और जो सेकेंडरी साइड है उसको इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी में लिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड पे जो करंट I2 था, इसको जब हम रेफर करते हैं इन द प्राइमरी, इसको हमने नाम दे दिया I2 डैश, हो गया वही सारे नाम सेम ही, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी वाली जो R2 X2 जो भी चीजें हैं वही रखेंगे, मगर उनमें से आगे डैश डैश देंगे, तो इट मीन वो रिफर्ड है बाय प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी रिफर्ड बाय द प्राइमरी। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर आप ये पूछेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, इसको किस तरीके से करते हैं। तो ये जो है सारा कमाल हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर रेशियो, जो कि वो दूसरी स्लाइड में रेफर कर रहा हूँ, वो है उसमें ए है, यहाँ पर के, मगर बात दोनों में से बात एक ही है। जो एक्चुअल में R2 है जो, उसको अब मैं इसकी मदद से समझाऊंगा, ठीक है। अब वो यहाँ पर इस चीज से, उसमें सारा कमाल हमारा ये जो रेशियो है ना, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, उसका है। वो जो इम्पीडेंस के दरमियान रेशियो कैसे उसने निकाला, वो क्या बनता है, वो ये बनता है ए स्क्वायर, ठीक है। वो कैसे, मिसाल लो ये जो Z1 की जो Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 करेंगे, इनकी वैल्यूज डायरेक्ट लिखते हैं, तो V1 ओवर I1, V2 ओवर I2, ठीक है। जब इनको हम प्रॉपर वे में लिखेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा V1 ओवर V2 और ये I2 ओवर I1। तो ये दोनों रेशियो है, ये भी A के बराबर है, ये भी A के बराबर है, तो ये हो गया A स्क्वायर। तो इट मीन जो Z1 और Z2 का रिलेशन बना वो ये है, और ये जो है हमारे पास अब इम्पीडेंस के इक्विवेलेंट का रेशियो पूरा यहाँ पे बताया हुआ है, और यही सेम यहाँ पर ये हो रहा है। R2 डैश जो है एक्चुअली हमने जो रेफर करके लिखा है वो बन गया K स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर R2, जो ओरिजिनल जो सेकेंडरी साइड की जो रेजिस्टेंस थी वो उसके साथ A स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो R2 डैश बन जाएगा, जो कि जो प्राइमरी सेकेंडरी रेजिस्टेंस होगी रिफर्ड बाय द प्राइमरी हो गया, वो ये हो गया, मतलब वो सारी चीजें जो हमारी सेकेंडरी साइड पे थी वो रिफर्ड होगी प्राइमरी साइड पे आ गई। तो मैथमेटिकली हम इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिकली तो हम नहीं कर रहे, हम मैथमेटिकली देखें, इसे एनालिसिस हमारी बोलते थे। सेम सिमिलरली रिएक्टेंस का पार्ट भी वही होगा, वही इम्पीडेंस का पार्ट भी वही होगा, और सारी जो भी चीजें हैं ना वो उसमें हो जाएंगी। वोल्टेजेस सिर्फ रेशियो से रिफर्ड होंगे, ठीक है, और करंट्स में ये रेशियो डिवाइड में आ जाता है। तो ये क्या किया, सिंपली हमने उस तरफ रेफर कर दिया और ये हमने लिख दिया, और यही सेम चीजें वहां पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखी और यहाँ पे विथ लिखा हुआ है।
तो R1 प्राइमरी को हम डिवाइडेड बाय RA स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये हो गया, और ये जो है हमारी रिएक्टेंस है। अच्छा, ये इसमें दोनों चीजें। अब क्या हो गया, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये तो हो गया सिर्फ क्या किया हमने, सेकेंडरी जो है रेफर की हुई है बाय प्राइमरी। इसके दूसरा आप ये भी कह सकते हैं सर उसका इनवर्स भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द सेकेंडरी, मतलब अब पहले हमने रेफर्ड से क्या था, बाय प्राइमरी, ठीक है, रेफर किया था सेकेंडरी को, अब यहाँ पे उसके इनवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर वही सेम काम, ये सेकेंडरी सेम साइज रहेगी, और ये जो पूरी की पूरी साइड जो है ना रेफर होके आ गई। अब इसको प्राइमरी साइड को इन टर्म्स ऑफ लिखेंगे सेकेंडरी R2 के फॉर्म्स में, ठीक है, जो कि एक्चुअल में इस तरीके से आ गए। अब ये पूरी विथ रेशियोज हमने किया, तो ये एक्चुअल में बराबर ये पूरी आ गई, ठीक। R1 डैश R1 और के स्क्वायर R नॉट डैश इज इक्वल R नॉट अपॉन के स्क्वायर रिएक्टेंस, और ये जो है इनके साथ डिवाइड में आ जाएगा, जो रेशियो है आपका ट्रांसफार्मर का, और इम्पीडेंस के साथ भी वही होगा, वोल्टेज इसके साथ स्क्वायर में नहीं आएगा, सिर्फ डिवाइड में आएगा, और करंट के साथ इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। उधर देखें तो थोड़ा सा चेंज हुआ है मामला, ठीक है। तो ये हो गया दोनों साइडों में हम रेफरिंग हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में दोनों सिनेरियोस अब समझा दिए। चलो इसका हम करते हैं प्रॉब्लम। असल में ये जो है ना शॉर्ट वर्जन है, मगर इसमें प्रॉब्लम्स करवाए हुए हैं, तो मैं इसको कर रहा हूँ, और वो जो दोनों डिटेल डॉक्यूमेंट, तो अब जब बात समझ में आ गई तो आप इस डॉक्यूमेंट को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्जन में लिखा हुआ, ये दोनों आपके साथ शेयर हो जाएंगे। अच्छा, the number of primary and secondary trans of a single phase transformer are 330, मतलब प्राइमरी के 300 है और सेकेंडरी के 30 है। The secondary coil is connected with the load impedance of 4 ohm. Calculate the turn ratio। जो लोड इम्पीडेंस है, जो लोड कनेक्टेड है वो 4 ओम का है। अब कहता है कैलकुलेट द टर्न रेशियो, लोड इम्पीडेंस रिफर टू द प्राइमरी करंट इफ द प्राइमरी कॉइल वोल्टेज इज 220। अब लोड इम्पीडेंस रिफर टू दी प्राइमरी, मतलब प्राइमरी को कितनी लोड जो है ना वो रिफर होके प्राइमरी की तरफ कितना रिफर होगा, ठीक है। तो ये वही कैसा है कि सेकेंडरी को हम रेफर कर रहे हैं प्राइमरी की तरफ, जो जो लोड होता है वो सेकेंडरी की तरफ होता है, वो रेफर हो रहा है प्राइमरी साइड, तो वो पूछ रहा है कि कितना होगा। तो पहले तो टर्न रेशियो निकालें, वो N1 और N2, तो हमारा बन गया 10, ये 300 N1 और ये 30, ठीक है। जो लोड इम्पीडेंस जो ZL है, जो सेकेंडरी को रेफर हो रही है, उसकी फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर जेड है, जो ZL कितना है 4, ए कितना निकाला हमने 10 स्क्वायर के, ये 400, मतलब जो प्राइमरी में सेकेंडरी साइड में हमारा जो लोड 4 ओम का है, वो जो सेकंड जब आपके पास रेफर हो रहा है प्राइमरी साइड पे, वो हो रहा है आपके पास 400 ओम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द करंट इज, अब वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, प्राइमरी करंट इफ दी प्राइमरी, अब इम्पीडेंस हमारी कितनी है 400, जो कि लोड इम्पीडेंस है, जो रेफर हो रही है आपकी किस तरफ, प्राइमरी की तरफ। तो उसके रिस्पेक्टिव वोल्टेज इसने कितना दिया हुआ है 220, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल V इज इक्वल टू IR, उसके मुताबिक हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.55 एम्पियर। ये जो है इतना करंट हमारा जो प्राइमरी साइड में ड्रा होगा सप्लाई से। अच्छा, अब ये जो है हम लॉसेस हैं 3-4, जब इक्वल सर्किट्स बनाते हैं तो ये लॉसेस हमें ध्यान में होते हैं, देखने होते हैं। अब ये इनका लमसम बताऊं, ये वही है जो हम अभी पूरा डिस्कस कर आए हैं, जो ये यहाँ पर मैं उसको दिखाना चाहूंगा। ये हमारी वो प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस,
ये लेवल डॉक्यूमेंट आपको मेरे ख्याल में उम्मीद है कि इजीली और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये प्राइमरी वोल्टेज जो कि एक्चुअली में सप्लाई वोल्टेज है, और ये हमारा उसकी प्राइमरी साइड का ये करंट है, ये प्राइमरी साइड की रेजिस्टेंस, और ये प्राइमरी साइड की रिएक्टेंस। अच्छा, जब नो लोड होता है तो उस टाइम करंट कितना हमने जिक्र किया था, जो मैंने डॉक्यूमेंट बता रहा ना वो डिटेल्ड है, उसमें हमने इंडिविजुअली चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हैं। उसके बाद फिर हम ना ये कौन सा साइज का है, जब वो समझ में आ जाता है तो इस डॉक्यूमेंट को आप देखते ही चीजें समझ आएंगी। तो नो लोड करंट कितना था, आई नॉट। उसके कितने कंपोनेंट थे, दो थे। एक कंपोनेंट ये था जो कि एक्चुअल में लॉसेस थे, कॉपर लॉसेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा लॉसेस जो होते हैं वो दो हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं, एडी करंट लॉसेस और कोर लॉसेस, सारे मिला के जितने भी हैं वो इसमें आ जाते हैं। और दूसरा रिएक्टेंस जो मैग्नेटाइजेशन करंट, जिसको आई म्यू नॉट से या आई एम, दो किसी भी एक नाम से लिखा जाता है, तो वो यहाँ पर आ गया। ये मैग्नेटाइजिंग करंट, ये आपके पास एडी हिस्टैरिसीस करंट और कोर रेजिस्टेंस, ये सारे जो है मिला के कोर की रेजिस्टेंस से ही वो करंट जो गुजरता है वो वही होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आई नॉट में हो गया जब नो लोड कंडीशन होती है। आई बात समझ में, जब नो लोड कंडीशन हो। ठीक है, और ये हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में अब ये बाकी सारी चीजें सेकेंडरी की रेजिस्टेंस इंपीडेंस है ना, जो लोड इंपीडेंस। अब बात समझ में आ गई। ये हमारा आ गया ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम, जो कि वहां पर मैंने जो पहले डिस्कस किया था अब यहाँ पर, मगर ये जो है ना इसमें सारे करंट्स और वो एम्बेडेड है। हमने पहले सिंपल देखा था ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब इसमें सारे करंट जो है, करंट और वोल्टेज को लिखा हुआ है। फेजर डायग्राम क्या है, सिंपल वोल्टेज और करंट जो होता है उसको रेफर किया होता है। उसमें जो हमारे पास करंट और वोल्टेज को दोनों को साथ में कौन कितना लीड में है, लेग में, उससे हमें आइडिया हो जाता है देखते ही। तो इसमें हमारे पास जो ये जो प्राइमरी साइड पे रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस और सारी चीजें हैं वो, और सेकेंडरी साइड पे ये सारे इसमें एम्बेडेड हैं। अब वो कैसे हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा सप्लाई वोल्टेज से। तो सप्लाई वोल्टेज जो हमारा एक्चुअल में V1, ठीक है, और जो इसके ये तो हो गया उसमें। अब ये आइडियल कंडीशन नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन में तो क्या हो रहा था, हमारे पास जो ये प्राइमरी ये V1 था, इसके बिल्कुल अपोजिट E1 बन रहा था। तो मगर प्रैक्टिकल में ये एग्जैक्ट अपोजिट नहीं होता क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल होती है। तो ये हो गया V1, इसके जो अपोजिट में E1 बनता है ये, और E1 और E2 की डायरेक्शन दोनों की सेम होती है क्योंकि म्यूचुअल जो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन है, तो वो यहाँ पर आ गया। अब इस वोल्टेज की वजह से जो करंट, उसका भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, और वही करंट जो है आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये जो हमारा जो नो लोड पे करंट गुजर रहा है वो हो गया, और ये जो करंट है जो प्राइम जब सेकेंडरी पे आपके पास I2 ड्रा होता है, इसका ये एक्चुअल में ये करंट यहाँ पर है ड्यू टू दी जो लोड जैसे लगाया उसकी वजह से जो करंट आ रहा है। मगर अब इसमें जो फर्क ये आ रहा है कि ये इसको हम सिर्फ पैरेलल जो पैरेलल डायग्राम के हिसाब से इसको देख रहे हैं, तो ये इसके यहाँ पर -I2 हो गया। ये इसका दोनों का इक्विवेलेंट जो बना वो ये आ गया। ठीक है, ये हो गया लोड फेजर डायग्राम इसका। आई नो ये थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा होगा, मगर इसको आप इंडिविजुअली एज ए वोल्टेज और हर करंट को अलग अलग करके देखेंगे तो समझ में आपको आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप जरूर मुझसे वो फिर भी पूछें, तो उसको हम अलग से भी फिर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है सिंपल वही यहाँ से स्टार्ट करें आप, ये वाले से। ये प्राइमरी वाला वोल्टेज, इसके अपोजिट E1 हो गया, और E1 का जो है आपके पास वही सेम E2 हो गया, और ये हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि एक्चुअल में करंट की वजह से, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से IM। अब ये सारी चीजें यहाँ पर जो है ना इनमें एंगल हो जाती है, एंगल आ जाती है ड्यू टू द प्रैक्टिकल थिंग्स को, दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से। तो ये वहां का ये E1 हो गया, E1 यहाँ पे रेफर होके आ रहा है जिसको -E2 किया है,
और -E2 किया, और यहाँ पर E2 के साथ साथ E1 जो है उसमें हमारे पास I1 भी आ रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से जो ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट बन रहा है वो ये बना, ठीक है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। अच्छा, फेजर डायग्राम जब हमने बनाया कि 3 एस्पेक्ट से बनता है, किस तरीके से, ये जो लोड है ना, लोड 3 टाइप्स के हो सकते हैं ओवरऑल। कौन कौन से, या तो इंडक्टिव रेजिस्टिव लोड हो, या कैपेसिटिव लोड हो, या इंडक्टिव लोड हो। तो ये सिंपली रेजिस्टिव लोड के हिसाब से सेम काम जो है इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड के हिसाब से होंगे। इसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, इनके इम्पैक्ट्स आते हैं। हम उसको जो इसके जो डिटेल में इसको, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर और बाकी चीज़ें हैं जो कि और भी डेप्थ में जाएंगे तो फिर चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, मगर इतना बस आपको आइडिया हो कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट जो वो हमने वहां पे किया था, ये यहाँ पे एग्जैक्ट सेम आ गया। जब नो लोड कंडीशन पे जो होता है ये I नॉट होता है। दिस फिगर इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू द प्राइमरी वेयर ऑल पैरामीटर्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी टू द प्राइमरी एंड दीज पैरामीटर्स आर, ठीक है। अब क्या किया, ये जो सेकेंडरी साइड थी उसको कंप्लीटली रेफर कर दिया प्राइमरी साइड पे। ये वाला आप जो नजर आ रहा है ना पार्ट, सारे डैश डैश होंगे, और ये जिसके इक्विवेलेंट सारी वैल्यूज आ गए। R2 डैश इज इक्वल टू, एक्चुअली में R2 है, इसके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसके साथ ए डिवाइड में, और उसके साथ सिर्फ ए मल्टीप्लाई, ठीक है। ये रेफरिंग के हिसाब से के रूल्स के तहत हमने इसको रेफर किया। इसके इनवर्स जो जो सेकंड पार्ट है, ये सारा भी प्राइमरी को हमने रेफर कर दिया सेकेंडरी साइड पे, तो ये वो सारा प्राइमरी को रेफर करके सेकेंडरी साइड पे किया, तो ये सारे इक्विवेलेंट वैल्यूज आ गई, ठीक है। The no load current is very small as approximate equivalent circuit, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या किया है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी इंडक्टेंस है, ये भी इंडक्टेंस है, तो रिएक्टेंस है, तो इनको ओवरऑल सारों को मिला जुला के एक सिंगल फॉर्म में लेके आए, जिसको रेफर करने के बाद तो वो अप्रोक्सीमेटेड जो आता है वो ये है। इसको हमने आर इक्विवेलेंट कर दिया। आर इक्विवेलेंट एक्चुअल में वो जो दोनों आर आर है ना, आर ये और ये वाले, इन दोनों को सॉल्व करके हमने यहाँ पे रखा है। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया रेफर करके इक्विवेलेंट, और आर ये हो गया। तो ये हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। The no load current is very small as compared to the rated primary current, ठीक है। Therefore, there is a negligible voltage drop due to the R1 and X1। मतलब यहाँ पर जो है ये बहुत ही माइनर करंट ड्रा होता है, ये जो है ना, ये ठीक है, एज कम्पेयर टू जो रेटेड करंट है उसकी वजह से बहुत ही माइनर है। तो इट मीन्स जो हमारे पास जो है इसमें ना होने के बराबर वोल्टेज ड्रॉप होता है, हम कंसीडर करते हैं कि जीरो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। In this condition, it can be assumed that the voltage drop across the no load circuit is same as the voltage applied without any significant, ठीक है। मतलब अगर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर जीरो हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ना होने के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सिमिलर इतना ही वोल्टेज होगा जितना ये सप्लाई का है। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा ये हो जाता है, अगर यहाँ पर वोल्टेज जो है यहाँ पे, तो इस पूरे डायग्राम को हम पार्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना लॉस हो ही नहीं रहा। एग्जैक्ट यही वोल्टेज है यहाँ पर, इट मीन्स ये पैरेलल में आ गया, तो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे तो वो यहाँ पर भी वही वोल्टेज होगा जो इधर पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये सारी सीरीज में चीजें बन जाएंगी, तो हमारा इक्विवेलेंट बनना आसान हो जाएगा, जो कि यहाँ पर तभी इसको हमने कहा अप्रोक्सीमेटेड, क्योंकि हम अंदाजा कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है जो इसके साथ हमने पैरेलल में किया हुआ है, तो बाकी रिमेनिंग सारी इधर चली गई, तो रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट कर दिया, और इंडक्टेंस को इंडक्टेंस के साथ इक्विवेलेंट, रिएक्टेंस को, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास अब इक्विवेलेंट सर्किट बन के आ गया विद अप्रोक्सीमेशन।
अब आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन भी दो ही होंगी, क्योंकि जब प्राइमरी की तरफ हम रेफर करते हैं तो उस टाइम भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, जब सेकेंडरी की तरफ रेफर करते हैं उस टाइम भी। तो दोनों कंडीशन में ओवरऑल जो है जनरल डायग्राम तो यही आपको नजर आएगा। हाँ, उसकी इक्वेशंस में डिफरेंस आएगा। दिस इज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइम सेकेंडरी, सॉरी, where all parameters are transformed from primary to the secondary। ठीक है, इसमें प्राइमरी से सेकेंडरी को सारे रेफर करके इन पैरामीटर्स में एक अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन बनाया हुआ है, और उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये आपके सामने। अब जब सारी चीजें कर दी हैं तो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम दैट्स द इंजीनियरिंग सोल्व द प्रॉब्लम, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। ये पूरे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमने थोड़ा सा टच किया है। ऑब्वियसली बात है, इसमें डिटेल्स के हवाले से हम नहीं करें, मगर इतना चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरीके से रेफरिंग होती है और ये इस तरीके से होता है, और उनकी अप्रोक्सीमेशन हमने किस तरीके से की हुई है, और उससे फिर ओवरऑल इक्वेशंस में क्या बनता है। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो फिर इजीली आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम है, हम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ए 2.5 kVA 200 वोल्ट एंड 40, मतलब प्राइमरी का 200 है, सेकेंडरी का 40, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। द प्राइमरी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस 3 रिएक्टेंस 12 ओम respectively on the secondary side these values are 0.3 and 0.1, मतलब सेकेंडरी R2 and X2 जो है 0.3 and 0.1 दिया हुआ। फाइंड द इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। अब ये बताएं कि प्राइमरी की तरफ अगर रेफर करें सेकेंडरी को तो उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, और जब सेकेंडरी को प्राइमरी की तरफ रेफर करें तो उसके इक्विवेलेंट इंपीडेंसेस क्या होंगी, तो वो मालूम करें। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसफार्मर रेशियो का रेफरिंग में। तो हमें मालूम करना है ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो हम यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है तो इससे मालूम कर लेंगे। तो हमें V1/V2 हमें पता चला, वो है हमारा 5। तो ट्रांसफार्मर रेशियो तो हमें मिल गया, दैट्स गुड थिंग। अब टोटल रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इंपीडेंस रेफर टू द प्राइमरी कैन बी डिटरमाइंड एज, जो सेकेंडरी को जो हमने किया था वो ये है। फॉर्मूलेज वहां पे हमने लिखे हुए हैं कि हम जब रेफर करते हैं प्राइमरी साइड को तो उसके ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस A स्क्वायर R। ये जो है R1 दिया हुआ है 3, ठीक है, R2 दिया हुआ है 0.3, इसके साथ हम रेशियो मल्टीप्लाई करवाएंगे जो A स्क्वायर, ठीक है, वो करवाया तो हमारे पास रेजिस्टेंस आई, तो इक्विवेलेंट ओवरऑल बनी, वो बनी 10.5। सेम काम हमने इम्पीडेंस जो रिएक्टेंस है उसका पार्ट भी है यहाँ पर, तो वो भी है C1 X1 प्लस A2 और A स्क्वायर X2। A स्क्वायर 25 और ये जो है हमें दिया हुआ है 12, और ये जो है हमारे पास 0.1 है, ठीक है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर जो कि 25 है, और ये है, इसको हमने किया तो हमारे पास ये बन गया 14.52। और Z इक्विवेलेंट जो है एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है R इक्विवेलेंट प्लस J X इक्विवेलेंट, ठीक है। इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस ये निकाली, रिएक्टेंस ये निकाली, तो दोनों को इस फॉर्मेट में निकालें तो ओवरऑल इम्पीडेंस जो है जो रेफर टू द प्राइमरी साइड हुई है ऑफ सेकेंडरी, वो ये है। अच्छा, अब एग्जैक्ट सेम वे में उस तरफ हम चले जाएंगे तो उसमें फिर इक्वेशन ये हो जाती है। तो टोटल रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इम्पीडेंस रेफर टू द सेकेंडरी, उसके फार्मूला क्या है, वो R2 RA/A स्क्वायर, और तो ये 0.3 है और ये 3/25 जो कि है 0.42। तो हमारा ओवरऑल R इक्विवेलेंट जो कि रेफर टू द सेकेंडरी साइड हुई, उसके टाइम रेफर जब सेकेंडरी साइड पर करते हैं तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी ये बनी। एग्जैक्ट सेम वे में हम जो है रिएक्टेंस निकालेंगे और फिर उस दोनों को कंबाइन करके हम जो है अपने इम्पीडेंस को निकालेंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास ये रिएक्टेंस और उन दोनों को रिटर्न में लिखा, तो ये हमारी होगी इम्पीडेंस। आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ये जो है ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं सारी आपके पास, ठीक है। तो आई होप के
इसमें किसी को कुछ जो भी क्यूरी हो तो आप समझ चुके होंगे। और बाकी इसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम और असाइनमेंट्स मिलेंगी तो उसमें आपको जो भी इश्यूज हैं तो उसको आप जरूर अच्छा ये हो गया प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड चीजें हैं वो है जो टॉपिक है वो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है क्या एक्चुअली में? इट इज द difference between the no load terminal voltage to the full load terminal voltage, and it is expressed as the percentage of full load terminal voltage। ठीक है, it is therefore can be expressed as, तो वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली में क्या चीज है कि ये जो नो लोड एंड फुल लोड जो टर्मिनल वोल्टेज में जो है ना, मिसाल दो जब कोई भी लोड नहीं हो उस टाइम का वोल्टेज, मतलब कोई भी आपने सप्लाई कनेक्ट नहीं की, जस्ट लाइक जिस तरह हमारे हाफ पॉइंट है, मैं सपोज कर रहा हूँ हाफ पॉइंट आप कुछ भी उसको कनेक्ट ना करें उस टाइम का वोल्टेज, और फिर उसको हाफ पॉइंट में कुछ लोड लगा दें कोई आयरन मोबाइल चार्जर वगैरह उस टाइम का वोल्टेज, तो उन दोनों के वोल्टेज में जो डिफरेंस है तो वो एक्चुअल में हमारा जो है उसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। और उसको हम जो है जो लिखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो फुल लोड वोल्टेज है उसके रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, तो डिवाइड बाय करेंगे उससे तो हमें उसका वोल्टेज मिल जाएगा। अब जो नो लोड वोल्टेज जो है हमारे सेकेंडरी साइड की है तो उसको अगेन हम प्राइमरी साइड में रेफर कर सकते हैं, जो हम अभी अभी ही चीजें पढ़कर आए कि हम सेकेंडरी साइड को प्राइमरी, प्राइमरी साइड को सेकेंडरी। तो अगर नो लोड सेकेंडरी साइड के, ये 2 नजर आ रहा है आपको, सेकेंडरी साइड है, ठीक है, तो सेकेंडरी साइड है तो इसको हम रेफर करवा के एज ए प्राइमरी साइड में लिख सकते हैं, तो ये जो हो गया रेफर हो गया प्राइमरी साइड में आ गया, जो कि बन जाता है V1/A। ये भी अभी पीछे हम फार्मूला करके हैं, तो हमारा ओवरऑल वोल्टेज रेगुलेशन का ये फार्मूला ये बन गया। अच्छा, यूजुअली इट इज गुड प्रैक्टिस टू हैव स्मॉल एज small it is good practice to have as small a voltage regulation as possible। जितनी वोल्टेज रेगुलेशन जो कम होगी उतना अच्छा है, मतलब दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस कम हो, आइडियली मतलब जीरो होना चाहिए कि दोनों के दरमियान डिफरेंस ही ना हो। मैं वोल्टेज ना लगाऊं लोड यहाँ लगाऊं तो उसके वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। फॉर फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, मतलब उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता लोड कितना कनेक्टेड है नहीं है, उसका वोल्टेज टर्मिनल भी सेम रहता है। मगर इट इज not always a good idea to have low voltage regulation। Sometimes high impedances and high voltage regulation transformers are deliberately used to reduce the fault currents in a circuit। अरे फिर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, अब वो पावर सिस्टम्स में फिर जो दूसरी भी चीजें होती हैं हार्मोनिक्स कंपनसेशन और इस तरह की चीजें जो है ना फॉल्ट करंट्स वगैरह, तो जो फॉल्ट को डायग्नोसिस करना फिर वो पूरी एक अलग ही सिनेरियो बन जाते हैं। मगर वो ये एक पॉइंट आपको ये ध्यान में बताना था कि कुछ कुछ कंडीशन में ना वो हमारा जो आइडियल ना होना भी हमें फायदेमंद दे देता है, तो वो भी कभी कभी डेलिबरेटली उस चीज़ों को किया जाता है, उसके कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं डायग्नोसिस वगैरह में। अच्छा, ये तो वोल्टेज में हो गया। इसी तरीके से पावर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, हमें एफिशिएंसी मतलब हमने पहले पढ़ा कि हाई होती है, अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आइडियल में लॉसेस नहीं होते मगर प्रैक्टिकल में लॉसेस होते हैं, तो वो आउटपुट अपॉन जो इनपुट होता है वो उसको ओवरऑल आइडियली तो आउटपुट के बराबर होता है, मगर जब प्रैक्टिकल में हमेशा पावर कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो वो भी लॉस पावर एंड आउटपुट पावर मिला के हम देखेंगे तो हमें इनपुट पावर मिलेगा। तो पी आउट अपॉन पी इन, और पी आउट बराबर होता है पी इन बराबर होता है पी आउट प्लस लॉस लॉसेस। ठीक है, तो उन दोनों को हमने मिलाया और ये हमारा बन गया। अच्छा, पी आउट जो है उसकी इक्वेशन क्या है, जो आउटपुट सेकेंडरी साइड पे आ रहा है V2I2 cos थीटा 2, और लॉसेस क्या होते हैं कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस की इक्वेशन जो है ये है, ठीक है,
और ये आयरन लॉसेस में हमारे पास फिर जो है आयरन लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑफ्टन कॉल्ड एज कोर लॉसेस, ठीक है, which is a result of an alternating flux in the core of the transformer. The iron losses consist of the eddy current and the hysteresis losses. आयरन लॉसेस में दोनों चीजें है। अच्छा, अब एडी करंट लॉसेस, अब ये क्या हो गया, आयरन लॉसेस में दोनों चीजें आ गई, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस। अब एडी करंट की इक्वेशन क्या बन जाती है, eddy current losses क्या, a current will flow in the parts of the transformer. This current does not contribute in the output of the transformer but dissipated as heat. एक्चुअली में क्या होता है, जो एडी करंट की वजह से जो एज हीट, जितने भी ट्रांसफार्मर लॉसेस एज हीट डिसिपेट होते हैं, ठीक है, सारे हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दिस करंट इज नोन एज द एडी करंट लॉसेस एंड पावर लॉसेस ड्यू टू द this current is known as the eddy current losses. The eddy current loss P is directly proportional to the square of the frequency times the magnetic flux density, and the eddy current can be expressed as eddy power जो है वो उसकी इक्वेशन जो है, ठीक है। हिस्टेरिसिस पावर के लॉसेस जो हैं वो इसके बराबर आ जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पी आउट पान पी आउट प्लस पी लॉस, जिसमें दोनों हमारे हैं कॉपर लॉसेस और जो आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस, तो ये आगे है जो कि ये इक्वेशन आयरन लॉसेस में फिर अगेन दो पार्ट हैं, तो ओवरऑल इक्वेशन में और वो इनको इंडिविजुअल लिखें तो ये कुछ ये बन जाएगी पी आउट अपॉन कॉपर प्लस आयरन लॉसेस, ये कि ओवरऑल लॉसेस हैं, कॉपर लॉसेस इसके बराबर है, आयरन लॉसेस इसके बराबर, फिर आयरन लॉसेस जो है हमने ओवरऑल निकाला तो हमारी इक्वेशन जो बनी वो ये बनी, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा, टू फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी पुट द डेरिवेटिव ऑफ द एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू I2 इक्वल टू 0। इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू I2 और इसको 0 के पुट करेंगे, तो ये पूरी डेरिवेशन करके हमारे पास जो हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन बनी वो ये बनी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे, अच्छा ये इक्वेशंस हो गई सारी दी हुई हैं, और ये मैं आपको समझा दिया, सिर्फ मैथमेटिकल आप लोग खुद ही कैलकुलेट किया, डेरिवेटिव जो है उसको करना है, ठीक है। डेरिवेटिव का रूल वही है, u ओवर v का डेरिवेटिव मतलब v स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड, पहले फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव सो ऑन करके ये इक्वेशन हमारा यहाँ पर आ गई, ठीक है। उन सबको इक्विवेलेंट करके हम जो चीजें निकालेंगे वो ये इक्वेशन हमें मिली। आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस बराबर जब हो तो उस टाइम जो है हमारा ये कंडीशन है, ठीक है। और आयरन लॉसेस ये हैं और ये हमारे पास ओवरऑल मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन बन गई। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम एक प्रॉब्लम करते हैं। A30 kV ट्रांसफार्मर, A30 kV transformer has the iron loss and full copper loss of 350 and 650. A 30 kV transformer has the iron loss and full load copper loss of 350 and 650 watt copper, respectively. Determine full load efficiency, point 8 load efficiency, output kVA corresponding to maximum efficiency, and maximum efficiency consider that the power factor of the load is 0.6 लैगिंग। अब ये हमारे पास सारे जो हैं इसने बता दिए हैं कितना है, 350 एंड 650 लॉसेस वाट है इसके आयरन एंड फुल लोड कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास ये है, अब ये जो cos थीटा है ना, ये एक जो है पावर फैक्टर है, ठीक है। और वोल्टेज एंड करंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.6 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास वोल्टेज 30 kVA में
जो कि एक्चुअल में वोल्टेज, ये वी आई एक्चुअल में क्या है, पावर। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल पावर है। आउटपुट पावर किसके बराबर होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय ये, और ये जो है इनको, ये सारे केवीए के फॉर्म में। तो ये 30 केवीए पावर है, 30 केवीए मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर, वही सेम यहाँ पर आएगा, प्लस लॉसेस। तो ये हमारे पास जो आए हैं इनको इन टर्म्स ऑफ केवीए लिखें, तो ये बन जाएगा 350 बनेगा 0.35। ठीक है, के वी, किलो वाट। ठीक है, और ये बन जाएगा 0.65, तो उसको उस फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास जो आया एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर वो आई ये 94.5। अगेन मैं रिपीट कर दूं, शायद कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग आपको लग रहा हो। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। तो लॉसेस ये हमें दिए हुए फुल लोड पे, और पावर ये दिया हुआ है। पावर को मेरे साथ पावर फैक्टर, ये जो आपको इक्वेशंस नजर आ रही हैं, ये है क्या, वी आई क्या है, पावर है। ये cos थीटा जो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर प्लस ये सारे इक्वेशन जो है आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो किया हुआ है, पावर उसने डायरेक्ट दिया हुआ है, वोल्टेज करंट नहीं दिया तो उसने पावर दिया हुआ है, पावर के साथ पावर फैक्टर मल्टीप्लाई, पावर के साथ पावर फैक्टर मल्टीप्लाई, फिर आयरन कॉपर लॉसेस, तो हमें डायरेक्ट एफिशिएंसी मिल गई जब फुल लोड एफिशिएंसी। क्योंकि ये हमें लॉसेस किस पे मिले हुए, जब हमारे पास फुल लोड हो। तो पहला तो पार्ट हो गया। जब 0.8 लोड एफिशिएंसी हो, डिटरमाइन दी पॉइंट फुल लोड एफिशिएंसी। जब लोड जो है आपके पास 0.8 हो, तो मतलब 80% लोड हो, फुल लोड नहीं है, लोड एक्चुअल में जितना फुल लोड होना चाहिए उससे 80% है, तो उसमें एफिशिएंसी क्या होगी, तो 8 हाफ लोड। अब इसको करने का थोड़ा सा देखना है, आयरन पावर कितना दिया हुआ है हमें, लॉस 350, इसको 0.35 केवी हो गया, के वाट हो गया। कॉपर लॉस एट, आयरन लॉस जो होते हैं ये फिक्स है। कॉपर लॉस एट जो 0.8 फुल लोड, मतलब जो आपका फुल लोड का 0.8 जो पॉइंट मतलब 80%, फुल लोड का 80%। तो कॉपर लॉसेस हमें कितने दिए हुए हैं, 65। उसके साथ जो आपके पास जितना परसेंटेज है वो होगा, 0.8 पे पूछा है ना, तो 0.8 मल्टीप्लाई करके उसके साथ करेंगे, ये हो गया उसका मतलब, हमें 0.8 पे चाहिए ना, इसका स्क्वायर करेंगे और फुल लोड पे जितना लॉस हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमें ये मिल गया कॉपर लॉस। तब ये हो गया। अच्छा, अब इस पे जो आउटपुट 0.8 पे आउटपुट कितना होगा, आउटपुट क्या है, 30 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट पावर फैक्टर 30, हमारा पावर है टोटल, पावर फैक्टर 0.8 है और 0.6 है, तो 0.6 और ये पावर एक्चुअल में इसके साथ इस कितने लोड पे काम कर रहा है, 0.8 पे, तो वो 0.8 भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 80% पे पावर इतना हमारा। तो यही पावर, ये फिर फुल पावर, फिर जो हमारा कॉपर लॉसेस एट जो 80%, और फिर जो हमारा है 35 जो है, जो ये लॉसेस होते हैं आयरन लॉसेस, ये कांस्टेंट होते हैं, कोई भी कितना भी लोड हो, कम हो ज्यादा हो, वही होता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी हो गई 94.97%। यहाँ पे 94.97% यहाँ पे था, यहाँ पे 94.99%। अच्छा, अब क्या थर्ड पार्ट क्या है, आउटपुट केवीए करस्पॉन्डिंग टू दी मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब ये कह रहा है कि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कितना हमारे पास करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा कंसीडरिंग ऑल दी लॉसेस। तो जो मैक्सिमम आउटपुट हमारा आएगा, उस जो पावर आएगा फुल एफिशिएंसी, फुल मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो हमें पावर मिलेगा वो ये होगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर है, ये वाला जो ड्राइव करवाया हुआ है उससे। ठीक है, तो
आउटपुट इज इक्वल VI2 मतलब सेकेंडरी साइड का अंडर स्कोर पावर आयरन लॉसेस और I2 स्क्वायर जो कि सेकेंडरी साइड का करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो है आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस और रेटेड पावर जितना ट्रांसफार्मर है, रेटेड पावर कितना है 30, आयरन लॉसेस और फुल एफिशिएंसी पे जिसके फुल लोड पे इसके लॉसेस ये हैं। तो इस पे हमें ये 200 kVA हमें आउटपुट मिलेगा जब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमें ये पावर मिलेगा। आई बात समझ में? फोर्स क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी। पहले तो हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे मालूम किया कि कितना आउटपुट पावर होगा केवीए में। अब बताएं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पहले तो हम निकालेंगे मैक्सिमम पावर हमें एट दी 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर पे कितना आता है। तो मैक्सिमम पावर इतना आ रहा था और उसके साथ पावर फैक्टर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमें मैक्सिमम पावर हो गया और ये कॉपर लॉसेस हो गए और कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी दोनों बराबर हो जाते हैं, जो कि आयरन कॉपर लॉसेस मतलब ये 0.35 हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, कॉपर और आयरन लॉसेस बराबर हो गए। ठीक है, तो कॉपर और आयरन लॉसेस बराबर हो, इट मीन्स ये हो गया। और जब हमारे रेटेड मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आउटपुट पावर इतना मिल रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई पावर फैक्टर किया तो हमें ओवरऑल पावर ये मिल गया, रियल पावर। तो ये रियल पावर और ये फिर रियल पावर और फिर उसके साथ कॉपर के और आयरन के लॉसेस जो कि दोनों बराबर हैं, तो ओवरऑल हमें एफिशिएंसी मिलेगी वो है 94%। मतलब हमारे पास इस ट्रांसफार्मर में इस रेटिंग में जब 0.6 लैगिंग फैक्टर हो तो हमारे पास ये जो है 94% जो है इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया एफिशिएंसी। अब देखो हमने क्या क्या किया, ट्रांसफार्मर की वर्किंग, ट्रांसफार्मर की रेशियो, फिर ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट, फिर उसकी रेफरिंग के बाद फिर उसकी एफिशिएंसी। तो अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपको ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग जो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और फिर जो एक ट्रांसफार्मर के टाइप है, दो तीन टाइप्स हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और एस्टिमेशन ट्रांसफार्मर, उसके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जिसको भी जो क्वेरी हो तो जरूर डिस्कस कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।